Hello everyone, my name is Shani Sharma. So I'm back with another interesting video of class 6, which is the second chapter of geography, that is globe, latitudes and longitude. Let's start with the chapter. Yes, in the previous chapter you have read about our planet Earth is not a sphere. Okay, it is not a sphere. It is slightly flattened at the north and the south poles and bulge into the middle. Okay, so it is not at one place, it is bulging. Okay, you can see in this picture, this is the picture of the globe. That means globe is a model of the earth. So here you can see that it is not actually a sphere, it is flattened at the poles. ओके सो ये जो नॉर्थ और साउथ जो पोल है वहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट है, स्लाइटली फ्लैट एंड बल्ज इनटू द मिडल. Okay, now a globe is an accurate three-dimensional model. Three-dimensional means it has length, it has breadth and it has weight. Okay, so all the three things. So that is why it is called as three-dimensional model, which is the miniature form of the earth. It is a small, or a miniature means small form of the earth, which is mounted on a tilt shaft. This is the tilt shaft. Okay, it is placed on this tilt shaft so that it shows the inclination of the earth's axis. It is showing this is the axis of the earth and it is inclined, and the rotation. Okay, as you know that the earth rotates from west to east or east on its axis. So this is what it is saying, that it shows the inclination of the earth and also the rotation of the earth. It shows the relative shapes. That means we are talking about the characteristics of globe, that it shows the relative shapes, sizes and directions of the oceans and the continents. So with the help of globe we can identify the different countries, we can identify their shapes, their sizes. Okay, globes are also useful in understanding how days and nights are caused. Okay, so with the help of globe we can understand that how the days and the nights are caused. I hope you must have known about that experiment that we do with the help of torch or with the help of globe to see the formation of day and the night. Okay, now a globe however has some limitations. Okay, so हर एक चीज़ की जैसे कि कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ लिमिटेशंस होते, तो बिल्कुल यहाँ पे वैसे भी जो ग्लोब है उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ शॉर्टकमिंग्स है. इट इज़ बल्की एंड डिफिकल्ट टू कैरी और स्टोर. इट इज़ बल्की, एज यू नो दैट ग्लोब इट इज़ heavy in weight, so it is not possible for you to carry the globe. Okay, and it is also difficult to store it. It cannot provide detailed information about landforms, vegetation, soil. Okay, so ये detailed information नहीं, एक just slide, एक general information देता है, not detailed information about the landforms. Vegetation means plants. Okay, soils, climatic conditions, transport route and agriculture. Now an imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. एक imaginary line है, you can see this, the imaginary line which divides the globe or the earth, you can say that, into two parts. This line is known as equator. Okay, so equator is the, you can say it is an imaginary line. It is not actually drawn on the globe. Actually drawn नहीं है, ये एक imaginary line है जो earth को two equal parts में divide करती है. And these parts are called as this part is called as the northern hemisphere, and the south part, that means the southern part is called as southern hemisphere. Okay, so it divides it into the two equal halves. Okay, so ये equal halves में ही इसको divide करती है. So what is an equator? Equator is an imaginary line which divides the globe. This is the red color. You can see this line which is mentioned here in red color. So this is the imaginary line which divides the globe into two equal parts. This part is called as northern hemisphere and this part is called as southern hemisphere. Okay.
नाउ व्हाट आर लैटिट्यूड्स? सो चैप्टर का नेम जो है वो क्या है? ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड. सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द ग्लोब, कि ग्लोब का क्या, हाउ डज द ग्लोब लुक, व्हाट आर इट्स फीचर्स, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन, वो हमने डिस्कस किया है. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट लैटिट्यूड्स. दैट मीन्स व्हाट आर लैटिट्यूड्स? All the parallel circles from the equator up to the poles are called as parallels of the latitudes. Okay, so latitudes आप देख सकते हैं जो भी है इक्वेटर के एग्जैक्टली जो पैरेलल जो लाइंस है उन्हीं को हम द पैरेलल सर्कल्स. ओके, सो दिस इज एज यू नो द इट इज द ग्लोब इज राउंड इन शेप. ओके, सो उस पे जो लाइंस जो ड्रॉन है ये भी क्या है? इमेजिनरी लाइंस है. ये एक्चुअली अर्थ पे या ग्लोब पे जो है, सॉरी, अर्थ पे ड्रॉन नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस है. जो इक्वेटर के जो पैरेलल लाइंस है, दैट मीन्स द हॉरिजॉन्टल लाइंस विच आर parallel to the equator are called as latitudes. Okay, so latitudes क्या है? Latitudes are the imaginary lines which are drawn parallel to the equator and they are drawn from west to east. Okay, the equator represents the 0 degree latitude. So equator जो है वो कितने डिग्री पे है? On what degree? It is 0 degree. Okay, so the measurement, or you can say that the equator is marked at 0 degree. Since the distance from the equator to the either of the poles is 1/4 of the circle round the earth. Okay, as you know that 360 degree का circle होता है. Okay, तो वहाँ पे क्या है? 90 and 4 parts में 90, 90, 180, then 180 इंटू 2 हम करेंगे तो 360. तो 4 पार्ट्स में अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? दैट मीन्स एक पार्ट जो है, दैट मीन्स जो 1/4 पार्ट है उसका क्या एंगल है? 90 डिग्री. दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल. ओके, सो दिस 90 डिग्री पे जो है आपका दिस पोल, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज नॉर्थ पोल. एंड सिमिलरली the point which is in the southern hemisphere, this point at 90 degree, it is called as south pole. Okay, thus 90 degrees north latitude marks the north pole and 90 degrees south latitude marks the south pole. Okay, so equator is measured as 0 degree. 90 डिग्री पे आपका नॉर्थ पोल है नॉर्दर्न डायरेक्शन में और सदर्न डायरेक्शन में है आपका साउथ पोल एट 90 डिग्री. एज सच all parallels north of the equator are called as north latitudes. Okay, so जो भी latitudes है जो equator के parallel जो northern hemisphere में है, that means जो northern side में है, उसको हम क्या बोलेंगे? north latitudes. और similarly जो all the parallels south of the equator, यानी कि जो equator के जो south में जो latitudes है उनको हम क्या बोलेंगे? south latitudes. Okay, so I repeat, what are latitudes? Latitudes are the imaginary, or you can say that they are imaginary horizontal line which are drawn on the globe and they are parallel to the equator. Okay, now here are some important parallel of the latitudes. Okay children, so latitudes जो है they are 180, they are in total, that means they are 180 in number. So out of 180 there are 5 important latitudes that we will discuss here. Okay, so important parallels of latitudes यानी कि 180 इनका total number है. 180 में से 5 important latitudes है. What are those 5? We'll discuss here. Besides the equator, so equator जो है वो सबसे important latitude है because it divides the earth into 2 equal parts, northern hemisphere and the southern hemisphere. Okay, so equator क्या है? Again it is at 0 degree. The north pole अभी हमने discuss किया था, north pole है 90 degree N, that means in the northern direction, and south pole is 90 degree S. There are 4 important parallels of the latitudes. Okay, so इसके अलावा जो है, इनके अलावा अगर हम देखें तो 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं. ओके, सो व्हाट आर दो? सो 5 कैसे हो जाएंगी? इक्वेटर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड द एंटार्क्टिक सर्कल. इस तरीके से ये 5 इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विथ प्लस 2 पोल्स, दैट मीन्स द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. ओके, सो एक्सेप्ट दीज, दैट मीन्स बिसाइड्स द इक्वेटर, नॉर्थ पोल and the south pole, there are 4 important parallels of the latitude. Okay, so first is the tropic of the cancer. So children, ये आपका equator, as you can see it is marked at 0 degree. So this is the equator and just above it, this line, it is the tropic of cancer.
okay, Tropic of Cancer, and it is marked at 23.5 degree. N means it is in the northern hemisphere, so इसका जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, Tropic of Cancer 23.5 degree. okay, so इक्वेटर 0 डिग्री पे है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल 90 डिग्री. okay, then Tropic of Cancer 23.5, that means 23.5 degree, and in the northern hemisphere, okay, it is in the northern hemisphere. Then we have Tropic of Cancer, okay, Tropic of Capricorn, so it is in the southern hemisphere, that means in the southern direction. This is the Tropic of Cancer. It is also marked at 23.5 degree. okay, in the southern hemisphere. Then we have Arctic Circle. This is the Arctic Circle, 66.5 degree. okay, then we have in the north, and then we have Antarctic Circle, 66.5 degrees south. okay, so it is very easy to remember that we have 5 important latitudes. Equator which is marked at 0 degree, और जैसे ही आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे डिग्रीज जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी. दैट मीन्स यू आर एट 0 डिग्री, देन you are at 23.5 degree, then 66.5 degree, then we have 90 degree. okay, so this is the Tropic of Cancer. how will you learn that इक्वेटर मिडल में है जो अर्थ को, ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, एंड जस्ट अबव द इक्वेटर यू हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड जस्ट डाउन द इक्वेटर यू हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देन अबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यू हैव आर्कटिक सर्कल, एंड जस्ट बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न you have Antarctic Circle. So I hope all the important parallels of latitudes are clear. That is why I have pasted this picture, so that it is easy for you to learn with the help of diagram. Now, features of latitudes. There are 180 parallels of latitude, okay, 90 to the north and 90 to the south of the equator. okay, so equator के south में 90 and equator के below में, that means south में हो जाएगा आपका 90. okay, so total parallels of latitudes जो है वो कितने हैं, 180. okay, so each parallel of latitude is a complete circle. okay, हर एक latitude जो है वो एक complete circle form करता है. The parallels are equidistant except एट द पोल्स. ओके, जो पैरेलल्स जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे है, बराबर डिस्टेंस पे है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल है, बट एक्सेप्ट एट द पोल्स. पोल्स पर इनके बीच में जो ना डिस्टेंस होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. ओके, सो पैरेलल्स आर इक्वल डिस्टेंस, दैट मीन्स दे आर हैविंग इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, बट जो पोल्स के पास में जो लैटिट्यूड्स है उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसमें डिफरेंस है, वेयर द डिस्टेंस इज अ लिटिल मोर देन इट इज नियर द इक्वेटर. ओके, सो पोल्स के अबव यानी कि पोल्स के पास जो लैटिट्यूड्स है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है इक्वेटर के कंपैरिजन के लैटिट्यूड्स में. वाई? बिकॉज ऑफ द फ्लैटन पोल्स. ओके, बिकॉज जो पोल्स है वो क्या है, फ्लैट है, दैट इज वाई इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द लैटिट्यूड्स विच आर अबव द इक्वेटर. ओके, लैटिट्यूड्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ. ओके, इनकी जो लेंथ होती है वो अनइक्वल होती है, यानी कि सारे जो 180 लैटिट्यूड्स है उनका जो लेंथ है वो सेम नहीं है. ओके, द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड. इक्वेटर जो है लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है. ओके, एंड इट इज नंबर्ड एट 0 डिग्री. ओके, सो लैटिट्यूड्स की जो लेंथ होती है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम होता है. उसमें एक्सेप्शन है पोल्स के बीच में, पोल्स के पास जो लैटिट्यूड्स है वहाँ पर डिस्टेंस में डिफरेंस होता है, और इनकी जो लेंथ होती है वो अनइक्वल होती है, यानी कि ऑल you can say 180 latitudes they have different lengths. okay, so उसमें से जो इक्वेटर है वो लॉन्गेस्ट है एंड इट इज नंबर्ड एट 0 डिग्री. नाउ हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. हीट जोन्स ऑफ द अर्थ का मतलब क्या है कि सन की जो सनलाइट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अर्थ पे इक्वली नहीं होता है. ठीक है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है सनलाइट की या जो स्पीड होती है वो सारे ही अर्थ के ऑल ओवर एरियाज में इट इज़ नॉट सेम. ओके, दैट इज़ वाई हमने सनलाइट की डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अर्थ को 3 डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया है, डिफरेंट हीट जोन्स में. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. सो पहला जो है वो क्या है आपका, द टॉरिड जोन.
टॉरिड जोन जो है it lies between the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn. Okay, so torrid zone, it is shown here in this picture in red color, so that is why I have written it in the red color so that it is easy for you to understand. Okay, so the torrid zone जो है it lies between the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn. So this line is the tropic of Cancer because it is on 23.5 degree. We have discussed just now. ठीक है, सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जोन है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन. एज द सन रेज फॉल हियर वर्टिकली ओवरहेड ऑल द ईयर. सो यहाँ पे सन रेज जो है वो डायरेक्टली फॉल होती है. ओके, सो दिस जोन रिसीव द मैक्सिमम हीट. ओके, सो कंपेयर टू अदर टू जोन, दिस जोन रिसीव्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन. Okay, so that is why it receives the maximum heat. Okay, the word torrid means hot. Okay, so ये torrid वाला जो word, torrid का meaning ये क्या होता है, hot. यानी कि इन दो zones के comparison में जो torrid zone जो है वो क्या है, hot है, क्योंकि यहाँ पर sun की rays जो है वो directly fall होती है. Okay, so the torrid zone, it lies between the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn. Okay, now next we have the temperate zone. Temperate zone क्या है, it lies between the tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere. So temperate zone जो है, so it is in two parts में है ये. एक तो आपका northern hemisphere में tropic of zone का कुछ एरिया है और southern hemisphere में भी temperate zone का कुछ एरिया है. That is the temperate zone. So यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, that temperate zone it lies between the tropic of Cancer and the Arctic Circle. Okay, so यहाँ पे क्या है, this is the tropic of Cancer and this is the Arctic Circle. So Arctic Circle और tropic of Cancer के बीच में जो portion है that is the temperate zone, and also between the tropic of Capricorn and the Antarctic Circle. Okay, so this yellow portion is your temperate zone. Okay, so torrid zone है हमारा red portion which lies between the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn. Then above it we have temperate zone which is between the ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल. देन सदर्न हेमिस्फीयर में है ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और एंटार्क्टिक सर्कल के मिडिल वाला जो पोर्शन है दैट इज द टेम्परेट जोन, और इट इज shown in the yellow color. Okay, so ये क्या है, warm है. Now the word temperate means moderate. Moderate का मतलब क्या होता है, warm, यानी कि neither too cold nor too hot हम कह सकते हैं, normal, medium. ओके, सो द सन रेज स्लांट अ लिटिल. यहाँ पे सन रेज जो है वो थोड़ी सी स्लांटिंग की तरह यहाँ पे फॉल होती है, तो ये एक्सट्रीमली हॉट नहीं है. टॉरिड के कंपैरिजन में ये वार्म है, यानी कि नीदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट, ना ही ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म होती है यहाँ पे सन रेज. ओके, सो दिस इज द टेम्परेट जोन विच इज शोन इन द येलो कलर. ओके, Then we have the frigid zone. Frigid zone जो है it is shown in the blue color. That means frigid का freeze. Freeze का मतलब भी क्या होता है, ठंडा, cold. Okay, so lies between the Arctic Circle and the North Pole and between the Antarctic Circle and the South Pole. So it is mentioned, it is shown in this picture in blue color. So जो आपका frigid zone है वो भी again 2 में सिर्फ जो torrid है वो middle में है, ठीक है. उसके अलावा जो आपका frigid zone है, so it is between the Arctic Circle and द नॉर्थ पोल, और सदर्न में भी बिल्कुल ऐसा ही है, एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल के बीच का मिडिल का जो पोर्शन है दैट शोज द फ्रिजिड जोन. द सन रेज फॉल हियर एट एन एक्सट्रीम स्लांट. एक्सट्रीमली स्लांट होती है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे सन रेज जो है वो इट इज यू कैन से नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पे सन रेज जो है वो रीच करती है. दैट इज़ वाई ये एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है. अगर यहाँ पे सन रेज अच्छी क्वांटिटी में आती तो ये यहाँ पे फ्रिजिड जोन नहीं होता, यहाँ पे आइस नहीं होता. ओके, द सन रेज फॉल हियर एट एन एक्सट्रीम स्लांट. एक्सट्रीमली स्लांट देखो यहाँ पे ट्रॉपिक्स में सन रेज जो है वो डायरेक्टली फॉल होती है, टेम्परेट जोन में स्लांट होती है, लेकिन फ्रिजिड जोन में एक्सट्रीमली स्लांट होती है. ओके, और इट इज ऑलमोस्ट हार्डली सन रेज यहाँ तक पहुंच पाती है. दैट इज वाई इट इज फ्रिजिड, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज फ्रिजिड जोन, दैट मीन्स कोल्ड. एज अ रिजल्ट द रीजन रिमेन्स कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, स्पेशली इन द विंटर्स. सो इसी वजह से क्योंकि सन रेज जो है वो ना के बराबर हार्डली पहुंच पाती है और एक्सट्रीमली स्लांट होती है, दैट इज वाई ये जो रीजन है वो थ्रू आउट द ईयर क्या है, और स्पेशली विंटर्स में एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है. द वर्ड फ्रिजिड हियर मीन्स कोल्ड. ओके, फ्रिजिड का मतलब ही क्या है, कोल्ड. ओके, सो आई होप दीज 3 हीट जोन्स आर क्लियर टू यू. दिस इज द
torrid zone, which lies between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. Then you have temperate zone, which lies between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle. Then the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle. Okay, then we have a frigid zone, which lies between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere, and also in the southern hemisphere between the Antarctic Circle and the South Pole. Okay. Now what are longitude? Longitudes क्या होते हैं? Longitudes are imaginary semicircular lines. So अभी तक हमने डिस्कस किया था latitudes के बारे में, जो कि horizontal और imaginary lines होती थी, which is drawn on the globe from west to east, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है, तो लाइंस जो वो ड्रॉ हुई है वो भी वेस्ट से ईस्ट की टूवर्ड्स ही ड्रॉन हुई है. लेकिन यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है, समवेयर इट इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूड ऑल्सो, सो दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सेम है, करेक्ट है. ओके, लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइन्स. ओके, सो लॉन्गिट्यूड्स जो है वो सेमी सर्कुलर लाइन्स हैं दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. ओके, सो लॉन्गिट्यूड्स जो है वो आपकी वर्टिकल लाइन्स है और सेमी सर्कुलर लाइन्स है जो कि ग्लोब पे ड्रॉन होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. ओके, लैटिट्यूड्स जो है वो आपका वेस्ट टू ईस्ट वो हॉरिजॉन्टल लाइन से, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स जस्ट अपोजिट ऑफ इट ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेरिडियंस. उनको मेरिडियंस भी कहते हैं. वन ऑफ दीज मेरिडियंस इज डेजिग्नेटेड एज द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन. जैसे इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, बिल्कुल वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स जो एक लॉन्गिट्यूड है विच इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन, विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल part. That means the eastern hemisphere and the western hemisphere. Okay, so जैसे कि latitudes जो है, equator is the important latitude of all the latitudes, बिल्कुल वैसे ही prime meridian जो है वो important longitude है जो अर्थ को 2 equal parts में डिवाइड करती है. ओके, इट रन्स थ्रू द ग्रीनविच. ग्रीनविच इंग्लैंड के थ्रू जो है ये प्राइम मेरिडियन ड्रॉन होती है, यानी कि इंग्लैंड से निकलती है, इंग्लैंड को क्रॉस करती है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ग्रीनविच मेरिडियन. एंड जस्ट लाइक इक्वेटर इट इज ऑल्सो मार्क्ड एट 0 डिग्री. ओके, लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल्स ऑफ द इक्वल लेंथ. वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो अनइक्वल लेंथ के होते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स जो है वो बिल्कुल इक्वल लेंथ के हैं, यानी कि इनकी जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है. देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स, 180 टू द ईस्ट एंड 180 टू द वेस्ट. ओके, सो यहाँ पे जैसे कि लैटिट्यूड्स आपका 180 नंबर में है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स जो है वो 360 में है. दैट मीन्स 180 to the east and 180 to the west. Okay, so I hope this the definition or the meaning of the longitudes and their number are clear from this diagram. Now we have international date line. So children, एक है आपका international date line, or you can say that it is the longitude which determines the date. Okay, वो longitude जो dates को determine करती है कि किस दिन क्या date होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, international date line. International date lines क्या है, that it is same for all the countries. Okay, so internationally drawn है, that means it is useful, or it is used for you can say calculating the time for the entire world. That is why it is called as international date line. Okay, now like all longitudes it is an imaginary line. ये भी जैसे कि बाकी longitudes है, देखो latitudes हो या longitude तो सभी क्या है, imaginary lines है जो globe पे drawn हुई है, लेकिन actually ये आपको earth पे देखने को नहीं मिलती है. Okay, 180E and W is the same meridian and is simply called as meridian of 180 degree. Okay, please see this line. ये जो line है आपका international date line जो है ये आपका 180 degree पे है. You can see this 180 degree पे ये drawn है. This line is called as international date line. This line is drawn in a zigzag manner. देखो आप देख सकते हो ये zigzag है, ये straight line नहीं है. जैसे कि equator और prime meridian straight lines है, लेकिन यहाँ पे जो international date line जो है वो zigzag manner में drawn हुई है. Okay, and deviates at the places on the map so that it does not cut through any island or cause confusion of dates in one country. So ये जहाँ पर भी bend है या फिर zigzag जो bend हुआ हुआ है वो किसी island या कोई land portion की वजह से ये थोड़ा
डेविएट हुआ है, ताकि जो डेट्स को मार्क करने में कंफ्यूजन नहीं हो. While traveling across the IDL, one has to adjust the date and the time. Okay, अब यहाँ पर क्या है, हमें इंटरनेशनल डेट लाइन के अकॉर्डिंग अपने टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है. कैसे एडजस्ट करना पड़ता है, डेट कैसे एडजस्ट करते हैं हम. सो क्रॉसिंग इट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर आप इस इंटरनेशनल डेट लाइन को अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्रॉस करेंगे तो एक जो ट्रैवलर जो ट्रैवल कर रहा है उसको एक डे उसको ऐड करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, वो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ टुडेज डेट. ओके, सो अगर आज 12 सितंबर को अगर एक ट्रैवलर जो है इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो जब वो क्रॉस करके इंटरनेशनल डेट लाइन से आगे मूव करेगा तब उसका जो डेट होगा दैट विल बी 13 सितंबर. यानी कि जब वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करेगा तो उसका एक जो डे है वो इंक्रीज हो जाएगा, एक डेट उसको इंक्रीज करनी पड़ेगी. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि संडे से अगर हम ईस्ट से वेस्ट के टूवर्ड्स मूव करेंगे तो हमारा एक डे इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि संडे से मंडे हो जाएगा. या मैंने एग्जांपल लिया डेट का, तो वो 12 सितंबर इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करने से पहले थी. तो जब हम इसको क्रॉस करेंगे यानी कि ईस्ट से वेस्ट के टूवर्ड्स आएंगे तो हमारी डेट क्या हो जाएगी, 13 सितंबर. ओके, जस्ट अपोजिट ऑफ इट, जब हम इसको वेस्ट से ईस्ट की तरफ टूवर्ड्स मूव करेंगे यानी कि हम इंटरनेशनल डेट लाइन को वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको एक डे माइनस करना पड़ेगा. ओके, सो फॉर एग्जांपल हमने मंडे को क्रॉस किया है, तो जब हम इस लाइन को क्रॉस करेंगे तो हमें उस दिन संडे उसको मानना पड़ेगा. ओके, सो दैट डे विल बी संडे फॉर यू. ओके, और डेट की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करने से पहले अगर यहाँ पर हमारे 12 सितंबर है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 11 सितंबर. ओके, सो इंटरनेशनल डेट लाइन के अकॉर्डिंग हमें अपनी डेट्स जो है, डेट्स में हमारा नाम से ही क्लियर है, डेट लाइन है यानी कि ये डेट को कैलकुलेट करती है, डेट्स बताती हैं कि अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन को, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन को ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब आप क्रॉस करेंगे तो आपका एक डेट जो है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही आप इसको वेस्ट टू ईस्ट की टूवर्ड्स क्रॉस करेंगे तो आपकी एक डेट जो है वो कम हो जाएगी. ओके, सो इफ यू विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12 सितंबर है तो यहाँ पर वो हो जाएगा 13 सितंबर, और जस्ट अपोजिट अगर यहाँ पे 13 सितंबर है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 सितंबर. ओके, नाउ वी हैव लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम. सो लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से ही हम टाइम को डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, तो अभी भी हमने लॉन्गिट्यूड जो थी इंटरनेशनल डेट लाइन थी उसके अकॉर्डिंग हमने डेट्स को कैलकुलेट किया था. अब यहाँ पर हम उसके टाइम को कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी कंट्री में टाइम क्या होगा. ओके, लॉन्गिट्यूड्स हेल्प अस टू कैलकुलेट द टाइम. ओके, सो लॉन्गिट्यूड जो है वो हमें डेट को डिटरमाइन करने में, डेट को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है. तो बिल्कुल वैसे लॉन्गिट्यूड जो है हमको टाइम को भी कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करती हैं. एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वंस इन 24 आवर्स. सो आई होप यू नो दैट द अर्थ कंप्लीट इट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स एंड इट मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट के टूवर्ड्स वो मूव करती है विथ रेफरेंस टू द सन. सन के अकॉर्डिंग इट टेक्स 24 आवर्स फॉर एवरी लॉन्गिट्यूड टू पास थ्रू 360 डिग्रीज. यानी कि 360 डिग्रीज को कवर करने के लिए एक डे, एक यानी कि 24 आवर्स में वो एक डिग्री को कंप्लीट करेगा. ओके, द सन कवर्स 15 डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स इन 1 आवर. अब यहाँ पे सन की बात हो रही है कि सन जो है यानी कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करने के लिए आपको 1 आवर लगता है. यानी कि अर्थ जब रोटेट करता है, मूव करता है, तो उसमें 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को कवर करने के लिए अर्थ कह दो या सन के रेफरेंस से कह दो तो उसको 1 आवर लगता है. एंड टेक्स 4 मिनट्स टू पास ओवर ईच डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड. ओके, सो यानी कि एक डिग्री कवर करने में अर्थ को 4 मिनट्स लगते हैं. बिल्कुल वैसे ही 15 डिग्री को कवर करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है, 1 आवर. ओके, इफ द डिफरेंस इन द लॉन्गिट्यूड बिटवीन एनी टू प्लेसेस इज 1 डिग्री देन द डिफरेंस इन देयर टाइम विल बी 4 मिनट्स. ओके, सो दो प्लेसेस जो है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द एग्जाम्पल जोधपुर एंड द जयपुर फॉर एग्जाम्पल. सो जोधपुर और जयपुर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 डिग्री का है, तो उन दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 मिनट्स का. क्योंकि अभी हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि एक डिग्री
को पास होने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट्स का। सो फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो प्लेसेस में अगर 1 डिग्री का डिफरेंस है, दैट मीन्स उनके जो टाइमिंग्स है उसमें भी 4 मिनट्स का डिफरेंस होगा। ओके, सो इट इज क्लियर। सो आपको यहां से क्लियर हो जाएगी कैलकुलेशन कि 15 डिग्री को, अर्थ को 15 डिग्री कवर करने के लिए 1 आवर लगता है, तो 1 डिग्री यानी कि 1 डिग्री को कवर करने के लिए अर्थ को 4 मिनट्स लगते हैं और 15 डिग्री को कवर करने के लिए अर्थ को 1 आवर लगते हैं। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि जो अर्थ जो है वो 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट्स में कवर करता है, 15 डिग्री जो है 1 आवर्स में कवर करता है। तो बिल्कुल वैसे ही 24 आवर्स में वो 360 डिग्री पूरा कवर कर लेता है। यानी कि अगर 1 डिग्री के बीच में 1 डिग्री पे 4 मिनट्स का गैप है, तो बिल्कुल वैसे ही अगर दो प्लेसेस के बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस है, तो उन दोनों प्लेसेस के बीच में जो टाइमिंग्स का डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा, 4 मिनट्स। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द टाइम विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। Now, all the countries of the world refer to the local time of the 0 degree longitude. Okay, so जो भी countries जो हैं, all the countries they refer to the local time, यानी कि 0 degree लॉन्गिट्यूड पे जो लोकल टाइम हो रहा है, यानी कि जो प्राइम मेरिडियन जो है जीएमटी के अकॉर्डिंग हम अपना टाइम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इट हैज़ बीन डिसाइडेड एज अ रेफरेंस फॉर द वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि जो हमारा जीएमटी पे जो टाइम होता है वो इंटरनेशनल टाइम होता है, वो पूरे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम होता है। तो जैसे एक पूरे वर्ल्ड का एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो जीएमटी पे कैलकुलेट होता है, तो बिल्कुल वैसे ही हर कंट्री अपना एक लॉन्गिट्यूड, अपना एक लोकल टाइम को डिसाइड करती है। यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन की अकॉर्डिंग अगर हम फॉलो करेंगे तो सारी कंट्री में टाइम डिफरेंस होगा। सो दैट इज वाई हर कंट्री क्या करती है, अपना एक लॉन्गिट्यूड डिसाइड कर लेती है। उस लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम होता है उसी को पूरे ऑल ओवर कंट्री में एक तरीके से उसको इक्वल मानती है कि वही टाइम वो लोग उसको स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करते हैं, या उसी को हम लोकल टाइम कहते हैं। द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट 30 डिग्री। तो इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंट है वो 30 डिग्री पे है। ठीक है, सो देयर वुड बी अ टाइम डिफरेंस ऑफ द 2 आवर्स। ओके, हेंस टू अवॉइड द कंफ्यूजन 82 डिग्री 30 मिनट्स, यहाँ पे कॉमा का मतलब मिनट से, ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द इंडिया। क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे तो हर कंट्री में जो टाइम होगा वो डिफरेंस होता है। दैट इज वाई कन्फ्यूजन्स को, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम अपने कंट्री में किसी भी स्टेट को क्रॉस करें तो वहाँ पर हम अपनी वॉच को एडजस्ट करें, ये बहुत डिफिकल्ट है। दैट इज वाई हमने क्या किया है, हर एक कंट्री ने अपना एक लॉन्गिट्यूड डिसाइड किया है। सो उस लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम होता है वो पूरे ऑल ओवर कंट्री में एप्लीकेबल होता है। तो बिल्कुल वैसे ही इंडिया ने अपना एक स्टैंडर्ड मेरिडियन डिसाइड किया है। दिस इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन और इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द इंडिया। ठीक है, इसको हम IST कहते हैं, सॉरी इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द इंडिया। ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है। तो यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट इस लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम होगा इस मोमेंट पे वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम एक लॉन्गिट्यूड को फॉलो नहीं करेंगे, बहुत सारे डिफरेंट लॉन्गिट्यूड को फॉलो करेंगे, तो हम जब भी कोई स्टेट्स को क्रॉस करेंगे तो हमको बार बार अपने वॉच को एडजस्ट करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो दैट इज वाई हमने एक फिक्स अपना लॉन्गिट्यूड फिक्स कर लिया है, दैट दिस इज द लॉन्गिट्यूड एंड दिस इज वॉट वी विल फॉलो। ओके, नाउ इट पासेस थ्रू द मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। सो मिर्जापुर जो है उत्तर प्रदेश में, वहां से एग्जैक्टली पास होता है एंड इट पासेस थ्रू 5 इंडियन स्टेट। सो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है, IST इसको कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो, ये जो लाइन है, ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये हमारे 5 इंडियन स्टेट्स को क्रॉस करता है और एग्जैक्टली मिर्जापुर जो जगह है वहां से ये लाइन निकलती है, ये लॉन्गिट्यूड पास होती है। अब ये 5 स्टेट्स कौन कौन से है, फर्स्ट हो गया आपका उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, देन वी हैव मध्य प्रदेश, देन वी हैव छत्तीसगढ़, then 4th is the Orissa, then 5th is the Andhra Pradesh. Okay, so जैसे कि सारे कंट्रीज में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इंटरनेशनल डेट लाइन को फॉलो करें, सो दैट इज़ वाई हर कंट्री का अपना एक लॉन्गिट्यूड है। उस लॉन्गिट्यूड को वो उस लॉन्गिट्यूड पे उस समय जो टाइम हो रहा है वो पूरे कंट्री में एप्लीकेबल होता है, ताकि कन्फ्यूजन्स को अवॉइड किया जाए। वरना आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप हर स्टेट को जब क्रॉस करें तो अपनी वॉच को एडजस्ट करें। दैट इज़ वाई इंडिया ने अपना एक फिक्स
लॉन्गिट्यूड डिसाइड कर लिया है दैट दिस इज देयर लॉन्गिट्यूड विच इज मार्क्ड एट 82 डिग्री 30 ईस्ट। ओके, सो ये लॉन्गिट्यूड है इंडिया का जिसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ पर जो टाइम होता है उसको हम लोकल टाइम कह सकते हैं या उसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कह सकते हैं। और ये आपका 5 स्टेट से क्रॉस होता है और एग्जैक्टली ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से क्रॉस होती है। सो हाउ डू वी कैलकुलेट टाइम विद द हेल्प ऑफ द लॉन्गिट्यूड? हम उसको करेंगे, लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम हमारा टॉपिक है कि जैसे कि सी चिल्ड्रन इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो डेट्स को कैलकुलेट करता है, तो सो इन द सेम मैनर GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो टाइम को कैलकुलेट करती है। ठीक है, नाउ व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, अगर ग्रीनविच पे एग्जाम्पल दे लीजिए, मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम टाइम, अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं तो द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड विल बी 1 PM, यानी कि 15 डिग्री के लॉन्गिट्यूड पे 1 आवर का डिफरेंस होगा, यानी कि उसी समय वहां पर 15 डिग्री के यानी कि एक लॉन्गिट्यूड पे 1 डिग्री पे अगर 12 यानी कि 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पे, तो नेक्स्ट 15 डिग्री पे आपका 1 बजेगा, यानी कि दोनों के बीच में 1 आवर का डिफरेंस होगा। कैसे होगा 1 आवर का डिफरेंस? 15 इंटू 4 मिनट्स इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। अभी हमने क्या डिसाइड किया था कि 1 डिग्री को कवर करने के लिए 4 मिनट्स लगते हैं, तो अगर हम 15 डिग्री को कवर करेंगे तो दैट मीन्स 15 इंटू 4 यानी कि 60 मिनट्स। ओके, सो दैट इज वाई इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 1 आवर का है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द टाइम। हाउ? अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि 1 डिग्री कवर करता है 4 मिनट्स में, तो अगर हम कहेंगे 15 डिग्री कितने टाइम में कैलकुलेट होगा यानी कि कितने टाइम में कवर करेगा, तो वो हो जाएगा आपका 15 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। दैट इज वाई कि अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं तो उसके नेक्स्ट 15 डिग्री पे 1 बज रहे हैं 1 PM। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 आवर का है, क्योंकि 15 इंटू 4 मिनट्स हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 मिनट, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स, दैट मीन्स 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ओके, एन आवर अहेड ऑफ द GMT, यानी कि GMT से अगर हम 15 डिग्री पे देखें तो 1 आवर का डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते। तो नेक्स्ट अगर हम 30 डिग्री पे करेंगे तो 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा, उसके नेक्स्ट करेंगे तो 3 आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा। ओके ओके, सो हाउ एवर एट 15 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड द टाइम विल बी बिहाइंड GMT बाय एन आवर, दैट मीन्स इट विल बी 11 AM। अगर हम 12 नून से ग्रीनविच के जैसे कि हम ईस्ट से वेस्ट के टूवर्ड्स मूव करेंगे तो वहां पर क्या होगा? 1 आवर कम का डिफरेंस होगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल ग्रीनविच पे 12 नून का टाइमिंग है, तो अगर हम बिल्कुल वैसे इंटरनेशनल डेट लाइन की तरह कि अगर हम वेस्ट से ईस्ट की टूवर्ड्स मूव करेंगे तो यहाँ पे 1 बज रहा होगा, और जैसे ही हम इसको अपोजिट जाएंगे यानी कि फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जब हम मूव करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 AM हो जाएगा। ओके, सो GMT के बिहाइंड 1 आवर लेस हो जाएगा और GMT के अहेड 1 आवर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो इट विल बी लाइक 11 then 12 then 1 PM. Okay, as the local time differs by 4 minutes at every longitude, it would create a lot of confusion regarding the train and the flight timings and the daily routines for any country. Okay, so अगर local times इस तरीके से अगर हम देखें तो जैसे कि local time जो है वो every डिग्री पे 4 मिनट्स में यानी कि हर डिग्री पे 4 मिनट्स का डिफरेंस आता है, तो इस तरीके से क्या होगा? हमको बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? कन्फ्यूजन हो जाएगा। उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया? अभी हमने डिस्कस किया था, therefore each country selects a particular meridian. हर एक कंट्री क्या करती है? अपना एक पर्टिकुलर मेरिडियन या अपना ओन लॉन्गिट्यूड को फॉलो करती है, एंड द लोकल टाइम ऑफ दिस मेरिडियन इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर दैट कंट्री। यानी कि उस मेरिडियन पे जो टाइम होता है वही उस कंट्री का लोकल टाइम होता है या वही उस कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम होता है। ठीक है, सो कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए ट्रेन टाइमिंग जो है वो रूटीन में कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए हर कंट्री ने अपना ओन लॉन्गिट्यूड डिसाइड कर लिया है, और उसी लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम होता है उसको हम लोकल टाइम कहते हैं, और वही लोकल टाइम जो है वो पूरी कंट्री के लिए सेम होता है, एंड दैट टाइम इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर दैट कंट्री। ओके,
नाउ द वर्ल्ड हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स. ओके, सो जैसे कि हर एक का अपना लॉन्गिट्यूड होता है कंट्री का, तो उस तरीके से 24 ऐसे लैटिट्यूड्स है जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज फॉलो करती है. सो देयर आर 24 टाइम जोन्स. ईच टाइम जोन कवर 15 डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड. ओके, सो हर एक टाइम जोन जो है वो 15 डिग्री जो है एरिया को कवर करता है. देयर इज एन आवर डिफरेंस इन द लोकल टाइम ऑफ द एडजॉइनिंग जोन्स. क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था दैट 15 डिग्री जो है वो 1 आवर में करता है, तो दैट इज़ वाई 15 डिग्री से अगर आप नेक्स्ट 30 डिग्री पे जाएंगे तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 आवर का होगा. व्हेन द पीपल क्रॉस द टाइम जोन्स दे हैव टू एडजस्ट देयर वॉचेस. तो आपको पता ही, जैसे ही अगर हम एक टाइम जोन से नेक्स्ट टाइम जोन पे जाएंगे तो हमको वॉच क्या होगा, अपना वॉच एडजस्ट करना पड़ेगा. लेकिन अगर हम हमारी इंडिया की जो अपना स्टैंडर्ड टाइम जो है उसको हम फॉलो करते हैं, वहाँ पर हमको अलग अलग स्टेट्स में जाने पर हमको अपना वॉच एडजस्ट नहीं करना पड़ता है. लेकिन जो हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन जो है या फिर हम जो टाइम जोन्स को अगर हम क्रॉस करेंगे तो वहाँ के अकॉर्डिंग हमको अपनी वॉचेस जो हैं वो एडजस्ट करनी पड़ेगी. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. So children, thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel. I will meet you in the next interesting video. Till then, bye. Take care.